Hello students, I am your SSC teacher Sonu Kasana and today I am going to explain you the noun, our first grammar topic. Okay, let's start. All naming words such as boy, girl, Delhi, cow, tiger, scale, etc. All naming words such as boy, girl, Delhi, cow, tiger, scale, etc. are nouns. ठीक है, all naming words. There are 5 types of noun. How many? 5. Remember this. There are 5 types of noun. How many? 5. Got it? Okay. Let's move. First one always counts is proper noun. Proper noun. A proper noun is the special name of a particular person or place. A proper noun is the special name of a particular person or place. For example, Sweta is my friend. Sweta. I live in Kolkata. Chandigarh is a beautiful place. Harsh is an intelligent boy. A proper noun is the special name. Special name as Sweta, Kolkata, Chandigarh, Harsh. All these names are special because they belongs to a particular person or place. समझ में बात आपको? जैसे इंडिया में कोलकाता, तो जो आपका वेस्ट बंगाल में है वही कोलकाता है. श्वेता उस जो भी है उसकी फ्रेंड का ही जिक्र है यहाँ पे. श्वेता इज माई फ्रेंड. जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है कि या बोल रही है कि मेरी फ्रेंड है श्वेता. तो श्वेता उसकी फ्रेंड का ही नाम है. श्वेता किसी और का भी नाम हो सकता है बट इट्स ए स्पेशल नेम, स्पेशल पर्सन का नाम है. ठीक है, ये कॉमन नाउन नहीं होता, चाहे 4 का हो 6 का हो. ओके, चलिए. ऑल द वर्ड्स इन इटैलिक आर प्रॉपर नाउन. श्वेता इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन. कलकत्ता इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस. such nouns that are all names of particular persons, place or things are called proper noun. Note: a proper noun always begins with a capital letter. This is a special thing. A proper noun always begins with a capital letter. Capital letter. You can notice that thing. देखिए यहाँ पे कोलकाता में के कैपिटल है, श्वेता में एस कैपिटल है, चंडीगढ़ का सी कैपिटल है, हर्ष का एच कैपिटल है. ओके. द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. एक जैसी चीज़ों के जो नाम होते हैं, जो एक पार्टिकुलर क्लास को नाम दिया जाता है, इज कॉल्ड कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक बनानाज. जो जितने भी बनाना हैं आप उन सबको बनाना ही कह सकते हैं. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पार्क. पार्क का कुछ भी नाम हो, नेहरू पार्क, इंदिरा पार्क या रॉक गार्डन, ठीक है, इस तरह से, तो कुछ भी नाम हो वो पार्क ही है. ही फ्लाइज अ काइट इन द स्काई. वो काइट किसी भी तरह की और कुछ भी ब्रांड की हो, काइट को आप सबको काइट कह सकते हैं. ठीक है, लाइक पेपर काइट, पॉली काइट्स, लाइक. ठीक है. ओके. गर्ल्स आर प्लेइंग. तो गर्ल्स यहाँ पे क्या है, आपका कॉमन नाउन है. गर्ल्स, आप किसी भी लड़की को, आप पूरे सभी लड़कियों को लड़की कह सकते हैं. उनका स्पेशल नाम कुछ भी हो सकता है. जो स्पेशल नाम होगा वो उनका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा. और जब आप उसे लड़की कहेंगे, दैट मीन्स इट इज़ ए कॉमन नाउन. All the words in the italic are common nouns. Bananas are the names of the common fruit or things. Park is the name of a common place. Kite is the name of a common thing, and girls are the names of common persons. Collective noun. Now, third one is the collective noun. Collective noun, when a noun stands for a collection of persons or things considered as one complete whole. Considered as one complete whole. Okay.
इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल, I purchased a bunch of grapes, bunch of grapes, अंगूरों का गुच्छा। ठीक है। I saw a herd of cattle, herd झुंड, समूह, cattle मवेशी पशु। Our class consists of 40 students, class कक्षा। There was a big crowd on the road, crowd भीड़, mob। ठीक है। All the italics are collective nouns. The word bunch is the name given to a collection of grapes. Similarly, the word crowd is the name given to a collection of people. Material noun. Material noun, a noun which stands for the matter or substance of which things are made is called material noun. For example, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड क्या है आपका? मटेरियल है, ओके, मैटर है। द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क, कॉटन से, वूल से और सिल्क से, ये सब क्या हो गए? मटेरियल हो गए। ऑल द वर्ड्स इन द इटैलिक आर मटेरियल नाउन, दे आर द नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ विच chair, chain and clothes are made respectively. Okay. Abstract noun. An abstract noun is the name given to a quality, a state or a concept. किसी गुण, किसी अवस्था या किसी विचार को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। These are something which we can neither see nor touch. ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम उन्हें छू सकते हैं। But which we can only feel or think of them. केवल हम उन्हें या तो महसूस कर सकते हैं या उनके बारे में केवल सोच सकते हैं, ऐसी चीज़। एग्जाम्पल, I always speak the truth. सच, सच दिखता नहीं है, आप केवल उसे सोच सकते हैं। किंग सोलोमन इज नोन फॉर हिज विजडम, विजडम भी नहीं दिखाई देती, बुद्धिमता, दिमागदार व्यक्ति। द ब्यूटी ऑफ द प्लेस अट्रैक्टेड मी, ब्यूटी खूबसूरती। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड, दयालुता, काइंडनेस। ऑल द वर्ड इन द इटैलिक आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे आर द नेम ऑफ द समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ or feel. Okay students, a list of collective nouns is here. You can read them. Okay, let's look. An army of soldier, army. Board of director, bunch of grapes, bananas and keys. Okay. Bench, this is bunch and this is bench. Bench of judges, crew of sailors ना। A constellation of stars, 6th क्लास हमने चैप्टर में पढ़ा था। कॉन्स्टेलेशन जो नक्षत्र बनते हैं, जो वो बनता है, एक पैटर्न बनता है स्टार्स का, इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड। ए बुके ऑफ फ्लावर। ए बेबी ऑफ गर्ल्स। ए बंडल ऑफ स्टिक्स। A clump of trees, a flock of birds or sheep. Okay, move ahead. A fleet of car or ship, fleet कहते हैं उसे, बेड़ा। A herd of cattle, buffaloes, झुंड कहते हैं इसको। A library of book, पुस्तकालय। A pack of wolves, thieves, cards, है ना, पैक समूह को ही कहते हैं। ये भेड़िए, चोर और जो कार्ड होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, वो उसके लिए यूज होता है। ए सेट ऑफ क्लब्स, टूल्स, सेट समुच्चय, वो भी एक समूह होता है ना। ए सूट ऑफ रूम्स, शूट। ए टीम ऑफ ऑक्शन प्लेयर्स, ठीक है।
खिलाड़ियों की, और जो बैल होते हैं उनकी जो एक ग्रुप होता है उसे टीम कहते हैं। ए टुफ्ट ऑफ ग्रास, ठीक है, पूरा बंडल बनाते हैं घास का, टुफ्ट कहते हैं उसको, TUFT, टुफ्ट। ए गैंग ऑफ थीव्स, जो चोरों का गैंग भी होता है, और ये अभी हमने देखा था थीव्स के लिए हम पैक भी यूज़ करते हैं। ओके। ए लिटर ऑफ पिग्स या पपीज़, ठीक है, पपीज़ का जो ग्रुप होता है उसे लिटर बोलते हैं। ए मॉब ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को मॉब भी बोलते हैं, क्राउड भी बोलते हैं। स्वाम ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों का समूह होता है उसे स्वाम बोलते हैं, स्वाम। ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। ए शॉल ऑफ फिश, ओके, जो मछलियों का समूह होता है उसे शॉल बोलते हैं। ए ट्रूप ऑफ डांसर, जो नृत्य करते हैं, नर्तक या नर्तकी, उनके समूह को ट्रूप बोलते हैं, ठीक है, ट्रूप। ए ट्रूप ऑफ लायन और मंकीज, ठीक है, स्पेलिंग का डिफरेंस है, TROOP ट्रूप, और ये TROUPE ट्रूप, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको लर्न भी करने हैं, इसकी एक एक्सरसाइज है एक छोटी सी, जो कि आपको होमवर्क में दी जाएगी, हॉलीडे होमवर्क में। तो आप पहले इसे कंप्लीट कर लें। यू हैव टू राइट ऑल द मटेरियल, all the exercise I explain here, all the definitions and examples. Okay, you can pause the video and write all these things in your grammar book. This is the first topic we are discussing. Okay, thank you.